Hello friends, today we are going to start with the concept of accounting, that is the most important pillar of accountancy, that is double entry concept. And this double entry concept will give rise to journal entry, right? So this double entry, if you have a clear idea about the double entry concept, I am sure that you will be one of the best accountant of the country. So whenever there is a trouble in accountancy, I would advise you that you think of what will be the journal, and that will solve your problem. This is CA Manas Kaur. I have got a 32 years professional experience as well as teaching experience. I am telling you, if you are very good in the journal entry, then definitely you won't be facing any problem in accountancy. Whatever you want to read, suppose you are going for, this is the concept, that is double entry. If your double entry aspect, double entry concept is clear, then I am sure if you are going for your BCom, if you are going for any professional exam like CA, like CMA, like company secretary CS, like others, MBA, wherever you go, if you want to find any core accountancy, or you can go for the job, right? Then I am sure that if you have got a strong double entry concept, strong journal entry idea, then all these places you will be the most successful in accountancy, right? So this double entry concept, this journal entry, is the most important part of accountancy study. And all of you know the Luca Pacioli, and he is considered as the father of modern accounting. He has given this double entry concept in 1494, but nobody in the world, at least for 450 years, nobody understands his theory. Everybody was following that single entry system, and nobody was serious that what this great man had told. And after that, in the 19th century, early 19th century, the world started thinking of the concept of double entry system given by Luca Pacioli. And now most of the organization, most of the countries, they follow the double entry system, that is journal entry. Every debit has a corresponding credit. कहाँ डेबिट होता है तो एक क्रेडिट तो होना चाहिए, अगर कहाँ क्रेडिट होता है तो ये डेबिट होना चाहिए. These two words, debit and credit, is the completes your double entry system. And always this debit is equal to credit.
if debit is equal to credit, then sometimes we assume that there is accounts is arithmetically correct. So let us find out how to do the journal entry, how to start that. You will see in accountancy language, in accounting language, we know that there are just like four things are available, and this is your sometimes called asset, right? And similarly another one is your liability. And another one is your expenses. I am writing exp, this is expenses. And another one is your income. In the asset, there are two types of asset here. One is your tangible. Asset means कोई property. Property means I should start with the land. Land is a fixed asset. Building, land, building, furniture, plant, machinery, motor vehicles, animals, these are all assets of tangible nature. एसेट जितना होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या है? ना कोई लैंड है, ये प्रॉपर्टी होगा, इसको टेंजिबल. एसेट दो टाइप का होता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, राइट? सो टेंजिबल एसेट का अंदर कुछ चीज आता है, इंटेंजिबल का अंदर कुछ चीज आता है. टेंजिबल का एक छोटा एग्जांपल में दे सकते हैं कि दिस इज ए लैंड. लैंड इज ए टेंजिबल एसेट जिसको तुम टच कर पाते हैं, देख पाते हैं. इट इज ए फिजिकल एग्जिस्टेंस. सो जो फिजिकली तुम देख सकते हैं उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट. द एसेट व्हिच आर फिजिकली एग्जिस्ट, व्हिच यू कैन टच. You can also feel. You can touch and feel and physically exist. तब उसको बोलते हैं tangible. क्या? एक exist, touch and feel. इंटेंजिबल जो होता है ये आपका, आप टच नहीं कर सकते हैं, ओनली फील. यू कैन फील द एसेट. यू कैन नॉट फील द एग्जिस्टेंस. यू कैन नॉट टच इट. You cannot feel the existence also, but you can feel only. This type of asset is your intangible asset. So एक tangible, एक intangible. So let us find out. I will come to the liability, expense. These are four, you can say,
These are 4 bucket, and each bucket we put the different type of items, and each item has got a different taste also. The asset is such a thing which lasts longer. Your land, it has a infinite life. Your building, it has a long life. Your plant and machinery, it has a long life. Your furniture, this is also long life, generally long life. Animals also coming under your tangible asset. इंटेंजिबल एसेट का अंदर में बोलते हैं कि आपका गुडविल. सपोज ए कंपनी, ए ऑर्गेनाइजेशन, ए पर्सन हैज गॉट ए रेपुटेशन. क्या आप रेपुटेशन को देख सकते हैं? नहीं. आप फील कर सकते हैं कि ये इन लोग का रेपुटेशन है. मान लीजिए कि कहां एक शॉप होता है, मेरा शॉप और मेरा शॉप का पास और एक शॉप है जो कि सेम चीज हम दोनों सेल करते हैं. मैं जो सेल करते हैं दूसरा आदमी भी वही सेल करता है. दोनों सेल्स, ग्रोसरी शॉप है और हम दोनों का सेलिंग प्राइस से कैपिटल जितना लगाए वो भी लगभग सेम है. लोकालिटी तो सेम ही है, बट मेरा जो शॉप है उसमें जो आदमी सारा दिन भर आते हैं, मान लीजिए कि 20 people they come every day for shopping, but here also at least 200 people come for shopping. So what is the reason? Rate तो सेम है, क्वालिटी ऑफ द गुड्स आर ऑल्सो सेम, लोकालिटी सेम, एवरीथिंग सेम, बट either few number of people, either 200 large number of people they come for shopping here. The difference is the goodwill, जिसको सुनाम बोलते हैं. ये शॉप बहुत पुराना है और आदमी लोग सोचते हैं कि इन लोग का शॉप में जाएंगे, इसलिए इन लोग का एक गुडविल डेवलप होता है. ये गुडविल को हम लोग देख नहीं पाते हैं, बट वी कैन फील. दुकान में बैठ करके मैं फील कर सकते हैं कि उन लोग का एक सुनाम है, एक गुडविल है, इसलिए आदमी इधर ज्यादा जाते हैं और मेरा पास थोड़ा आदमी कम आते हैं. अगर मैं इस तरह स्माइलिंग सर्विस देंगे, अच्छा सर्विस देंगे, गुड्स भी अच्छा देंगे, हो सकता है कि थोड़ा दिन का बाद मेरा गुडविल भी आ जाएगा. सो गुडविल इज ए थिंग which we are unable to see, unable to touch. So existence, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस तो है, बट इंटेंजिबल एसेट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि मैं पकड़ सकते हैं और उसको टच भी नहीं कर पाएंगे, बट फील तो जरूर कर पाएंगे. इसलिए गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट. पहले में एसेट का बात बोलते हैं, इसका बाद में लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ये सब बोलेंगे आपको. सो लेट अस कम टू द एसेट. एसेट में आपका पहले आता है आपका
टेंजिबल एसेट, जितना टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट का अंदर पहले लैंड, दिस इज द मोस्ट फिक्स्ड एसेट। लैंड कभी खत्म नहीं होता है, लैंड क्रिएट नहीं होता है, डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, एक आदमी दूसरा को सेल कर पाते हैं, ट्रांजैक्शन हो सकता है। लैंड, देन कम्स बिल्डिंग, देन कम्स मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, अगर आपका बाइक है वो भी इधर आ जाएगा, एनिमल्स। इसी तरह जो चीज है जिसको में देख पाते हैं उनका क्वालिटी क्या है ना, ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। सेकंड क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस में तुम देख पाते हैं लॉन्ग लाइफ, ये भी मेरा एसेट होता है, और आई कैन फील, आई कैन टच, ये सारा क्वालिटी होता है। जो इंटेंजिबल एसेट है, दिस इज इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में आपका गुडविल, जिसको बोलते हैं सुनाम, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, नो हाउ, ये सारा चीज आपका इंटेंजिबल एसेट का अंदर आता है। सो एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है आपका इंटेंजिबल। सो इंटेंजिबल एसेट में आपका फिजिकल, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइफ तो लॉन्ग होता ही है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, लॉन्ग लाइफ फील तो जरूर कर सकते हैं, नो टच, टच कर नहीं सकते हैं। जिस तरह गुडविल को मैं टच कर नहीं सकते हैं, ट्रेडमार्क, वो भी एक, आप किसी से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक लाइसेंस का तरफ होता है। पेटेंट भी उसी तरफ होता है। कॉपीराइट, मैं एक ऑथर हूं इसलिए ये कॉपी का ऊपर मेरा राइट है, ये कॉपीराइट जो अधिकार है, मैं ये कॉपीराइट को सेल कर सकते हैं दूसरा को, बट उसको आप फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। लाइसेंस भी उस तरफ होता है। और नो हाउ, कोई साइंटिफिक चीज में डेवलप करते हैं, आइडिया, और इसी आइडिया को में फील कर सकते हैं, न्यू आइडिया, न्यू थॉट, न्यू डिस्कवरी, ये सब आता है आपका नो हाउ। सो ऑल दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स, दीज आर टेंजिबल एसेट्स। सो जो भी एसेट होता है, अगर मैं एसेट में कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो एसेट हो सकता है कि मेरा पास आएगा या मेरे से निकल जाएगा, राइट। मान लीजिए कि मैं बिल्डिंग खरीद कर सकते हैं, आई कैन परचेस ए बिल्डिंग, आई कैन परचेस ए लैंड, एंड
I can also sell a building, I can also sell a land. So transaction relating to your tangible intangible asset हो सकता है, इसमें आपका कैश में ऐड कर देते हैं, कैश, और बैंक वो भी मेरा एसेट है, डेटर वो भी मेरा एसेट है, डेटर मीन्स कस्टमर जिससे मेरे को पैसा मिलेगा, डेटर, और मेरा ये प्रीपेड, ये सारा चीज मेरा एसेट का अंदर आता है, राइट। सो कैश, मान लीजिए कि मैं एक बिल्डिंग परचेस किए 10 लाख रुपीज में। जब मैं बिल्डिंग परचेस करते हैं होता है क्या, मेरा पास बिल्डिंग आएगा, मैं बिल्डिंग का मालिक बन जाएंगे, और मेरा पॉकेट से 10 लाख रुपया निकल जाएगा, पॉकेट से निकलेगा या बैंक से निकलेगा। सो इसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन जो होता है ये टेंजिबल एसेट में हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट में हो सकता है। अगर मैं दोनों को जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे एसेट, राइट। तो एसेट में कोई ट्रांजैक्शन तो जरूर हो सकता है, आप देख लीजिए। अगर मेरा मान लीजिए कि आप कुछ भी काम करते हैं तो उसको मैं बोलते हैं इवेंट, राइट। आप कुछ भी काम करते हैं तो एक इवेंट हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक बुक लिखते हैं, ये भी इवेंट। आप पेन, when you are purchasing a pen, that is also event. But आप जब बुक लिखते हैं, आप maybe you are going for a study tour, this is also an event. आप बुक लिखते हैं, event. You are purchasing a pen, event. You are purchasing a furniture, event. ये सारा चीज इवेंट होता है। बट इवेंट का अंदर कुछ चीज होता है, देयर आर सम आइटम्स व्हिच आर ट्रांजैक्शन, and there are some items which are not transaction. मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन कैसे, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं ना, देर आर टू पर्सन्स हियर and one is giving something, this is giving, and another is giving something to the first person, receiving. So one person is giving something, another one person is receiving, maybe goods, maybe service, कुछ भी हो सकता है। एक टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट लोग पैसा देते हैं, दैट इज योर टीचर रिसीव होता है, और टीचर जो नॉलेज ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट लोग को, इसको गिविंग बोलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो ए ट्रांजैक्शन, बट नॉन ट्रांजैक्शन। आप बुक लिखते हैं, राइटिंग ए बुक, बुक्स राइटिंग, love, affection,
स्टडी टूर, इसमें आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। स्टडी टूर करने के लिए आप ट्रैवलिंग का ट्रांजैक्शन करते हैं, वो ट्रांजैक्शन का अंदर आ जाता है। रेलवे में जाते हैं तो रेलवे आपको सर्विस देता है, आप उसको पैसा देते हैं, वो ट्रांजैक्शन। बट जो स्टडी टूर जाके आपको जो बेनिफिट मिला है, द जॉय यू आर एंजॉइंग, द साइट सीइंग, ऑल दीज आर इवेंट्स बट नॉट ट्रांजैक्शन। सो कोई इवेंट होता है दो टाइप का, एक ट्रांजैक्शन, एक रिजल्ट इन नॉन ट्रांजैक्शन। ये चीज के लिए वी डोंट पास एनी जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री। लव एंड अफेक्शन का जर्नल एंट्री नहीं होता है। आपका पिताजी आपको प्यार करते हैं, माताजी करते हैं, फ्रेंड करते हैं, उसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। एंड फॉर दिस ट्रांजैक्शन, every transaction there is a journal entry here, right? So एक ट्रांजैक्शन में आपका एसेट परचेस करते हैं, सेल करते हैं, पैसा दे के परचेस करते हैं, ये सब चीज, all these things are coming under transaction, right? फिर देखते हैं जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, द फर्स्ट चीज ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन का फर्स्ट चीज होता है, इसको बोलते हैं वाउचर। कोई ट्रांजैक्शन होने से आपका पेमेंट वाउचर, जिसको वाउचर बोलते हैं, पेमेंट वाउचर या रिसीव वाउचर। सो वाउचर निकलेगा, वाउचर इज द फर्स्ट स्टेप। इससे आपको पता हो जाता है कि आप क्या खरीद किए, चीज क्या है और उसका वैल्यू कितना है। अगर वैल्यू नहीं है, बार्टर सिस्टम है, तब तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ये तो हम लोग पिछले कितना क्लास में भी पढ़े हैं। सो वाउचर में होता है डिटेल्स, अमाउंट। सो वाउचर में क्या क्या रहते हैं डिटेल्स ना, डिटेल्स ऑफ थिंग्स, नाम क्या है, क्या परचेस किए, क्या सेल किए, और मनी कितना, और क्या रहते हैं। अगर आपको कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो कौन सा पार्टी को आप सेल करते हैं, वो कौन सा पार्टी से आप परचेस करते हैं, उनका एड्रेस हो सकता है। एड्रेस, ये चीज आपका वाउचर में रहते हैं। कितना क्वांटिटी, कितना रेट, ये सब वाउचर में रहता है। क्वांटिटी, रेट, ये सब वाउचर में आपका आ जाता है। जब आपका पास वाउचर हो गया, तब अकाउंट्स का फर्स्ट स्टेप इज योर वाउचर। वाउचर होने का बाद वी विल स्टार्ट द रिकॉर्डिंग पार्ट। वाउचर से क्या निकलेगा, आपका रिकॉर्डिंग। Accounting is a recording, classifying the transaction. So recording का बाद जो स्टार्ट होगा, that is the recording का first step is your journal entry. This is the first step. Journal entry has got two effects. Every debit has got a corresponding credit.
एवरी डेबिट हैज गॉट ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। फिर जर्नल बनने का बाद वी विल गो फॉर, जर्नल का बाद क्या होता है, जर्नल का आपका हो गया। अब जर्नल का बाद मेरा लेजर बनेगा। जर्नल में सब कुछ में लिख देते हैं, और जब लेजर बनेगा तब क्या ना, आइटम वाइज लेजर होता है। एक आइटम का होता है, जिस तरह आप सैलरी साल भर पेमेंट करते हैं तो सारा सैलरी एक प्लेस में आएगा, उसको बोलते हैं लेजर। जर्नल में तो दे देते हैं कि हर मंथ में सैलरी, हर मंथ में रेंट, हर मंथ में इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाता है। बट साल भर थ्रू आउट द ईयर कितना मैं रेंट पेमेंट किए, कितना इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किए, कितना आपका सैलरी पेमेंट किए, अलग अलग से इफ यू वांट टू नो then we have to prepare the ledger. So लेजर से हम लोग का ट्रायल बैलेंस बनता है, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का फिर दो साइड होता है, एक होता है आपका डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। सो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड होता है, एक डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस से बनता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक पीएल, बैलेंस शीट, etc. All the things we can prepare by from the trial balance itself. So our discussion is the journal entry, the first step of recording the transaction, right? The first step to the transaction is your journal. So let us come to इसमें ये जो आप देखते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एंट्री ये होता है आपका एसेट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये तो है। रियल अकाउंट में आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। नॉमिनल अकाउंट में आपका डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम। में ये जो है उसको समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और आपको थोड़ा यू हैव टू थिंक मोर। In this case, I shall apply just a two. This is your candle and this is the image of the same candle but in opposite direction. अगर ये इंक्रीज, दिस इज योर डिक्रीज। ये आप देख लीजिए, दोनों कैंडल से हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्री। आई हैव नेम्ड दिस टेक्निक एज कैंडल स्टिक एंड इट इज वेरी इजी। अगर मैं कोई एसेट मेरा इंक्रीज होता है, एसेट अगर इंक्रीज, एसेट इंक्रीज होने से आपका ये डेबिट, ये सारा चीज मेरा डेबिट, ये सारा चीज मेरा क्रेडिट। दोनों कैंडल है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर आपका एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा, एसेट डिक्रीज।
तब ये क्रेडिट, राइट। सिमिलरली आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा, एक्सपेंस इंक्रीज, expense decrease। सिमिलरली अगर आपका एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस घटेगा तो इनकम, ये क्रेडिट। सिमिलरली कोई इनकम बढ़ेगा, इनकम इंक्रीज, आपका इनकम बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं क्रेडिट। एक्सपेंस इन डिक्रीज का मतलब वो भी आपका क्रेडिट। इनकम बढ़ेगा वो भी आपका क्रेडिट। इनकम कम घटेगा, इनकम डिक्रीज। इनकम अगर आपका डिक्रीज होगा तब ये डेबिट। सिमिलरली अगर आपका लायबिलिटी डिक्रीज और ये लायबिलिटी इंक्रीज, सो बस इसी में ही टोटल जितना भी जर्नल सब कुछ हो जाएगा। एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, इनकम डिक्रीज डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, ये दोनों इंक्रीज में आता है आपका, और ये दोनों आपका डिक्रीज में आएगा। ये दोनों आपका डिक्रीज में आएगा। सिमिलरली इधर देख लीजिए, ये दोनों आपका डिक्रीज में, ये दोनों आपका इंक्रीज में। इधर अगर इंक्रीज होगा तो इधर आप देख लीजिए डिक्रीज, इधर अगर डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज, राइट। सो ये डेबिट एंड दिस इज द ऑपोजिट पार्ट इज योर क्रेडिट, राइट। मान लीजिए कि आई एम गोइंग टू ए ट्रांजेक्शन 1, परचेस ए हाउस, परचेस ए हाउस, बिल्डिंग for rupees 10 lakhs। तब क्या होता है ये आप देख लीजिए, आप बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं, दिस इज द बिल्डिंग यू आर परचेसिंग। सो आप बिल्डिंग का मालिक हो गए। आपका पास बिल्डिंग आता है तो एसेट, बिल्डिंग एक एसेट है, इसलिए बिल्डिंग आपका पास आता है तो एसेट इंक्रीज। सो ये बिल्डिंग को मैं डेबिट कर देंगे। और जब आप बिल्डिंग परचेस किए तब आपका कैश बॉक्स था, ये जो कैश बॉक्स था ना, कैश बॉक्स था, और ये कैश बॉक्स में आप अच्छा से कैश बॉक्स को रखे हैं, बहुत पैसा है। मान लीजिए कि आपका पास था कितना ना, 50 लाख का बैलेंस था, और इससे ये 50 लाख से आपका
10 लाख माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग वालों को, जो बिल्डिंग का जो सेलर है उसको पैसा देना है, जो बिल्डिंग का सेलर है उसको पैसा देना है। ये आपका कैश बॉक्स, कैश इज ऑल्सो एन एसेट, बिल्डिंग इज ऑल्सो एन एसेट। ये आपका बिल्डिंग बढ़ेगा क्योंकि आपका पास बिल्डिंग आता है। कैश बॉक्स, कैश आपका घटेगा क्योंकि कैश आपका निकल जाता है, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज डिक्रीजिंग, सो कैश डिक्रीज, ये आपका क्रेडिट। बिल्डिंग इंक्रीज, ये आपका क्रेडिट। एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, दोनों ही। बिल्डिंग ही आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है। कैश बैलेंस आपका घटेगा और बिल्डिंग का बैलेंस आपका बढ़ेगा, इसलिए मैं उसको लिख सकते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख, 10 लाख का बिल्डिंग, और मेरे से कैश निकल जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ये आपका 10 लाख, राइट। सो बिल्डिंग इंक्रीज, कैश डिक्रीज, दोनों ही एसेट, दोनों ही एसेट। सो बिल्डिंग इंक्रीज, कैश डिक्रीज। थोड़ा नरेशन लिखना होता है कि आप क्या किए। बीइंग द बिल्डिंग purchased for cash, right? So this is all about your asset increase and asset decrease, right? So in this way we will continue with number of classes, so that you will build a very strong fundamentals. You remember the golden rule of accountancy for the purpose of theory, but just you remember these two candles, all the journal entry concept will be very much clear. If you like the video, please subscribe, and so that all my updates will be reaching to you, and thank you for the next class.